الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم جس تنظیم میں کام کر رہے ہیں اس کو مستحکم بنانے پر تھوڑا سا یہاں پر اپن بات کریں گے۔ کسی بھی تنظیم کو مستحکم بنانے کے لیے، تنظیم کے استحکام کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ وقت کی ہوتی ہے، یعنی اس تنظیم کے ارکان کا وقت جو ہے اس کا مؤثر استعمال ہونا چاہیے۔ میں نے جس سورے کی تلاوت کیا ہوں، ہم کئی بار اس میں پڑھتے ہیں، ایمان لانے والوں کی 4 خصوصیات کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والوں، نیک اعمال کرنے والوں اور صبر کی تلقین کرنے والوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر کی جو مدت انسانوں کو دی گئی ہے وہ ایک برف کی طرح ہے۔ جیسا ہم ہاتھ میں برف کو پکڑتے ہیں تو وہ تیزی سے پگھلتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارا وقت بھی تیزی سے ہمارے ہاتھ میں سے جا رہا ہے۔ اب اس کو ضائع نہیں کرنا بول کے ہم اس تنظیم سے جڑے، ہمارے وقت کا ہم مؤثر استعمال کرنے کے لیے اس تنظیم سے جڑے۔ اگر ہم اس کا استعمال مؤثر نہیں کریں گے یا غلط کاموں میں ہم اس وقت کو صرف کریں گے تو پھر ہم خسارے میں رہیں گے، جیسا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ رحمان کا آیت کا ایک ترجمہ ہے کہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ آج ہمارا وقت اگر ہم یہاں نہیں دیتے تو کہیں اور دیتے تھے، اور وہاں پر پھر ساری کچھ چھوٹی موٹے جھوٹ بھی بول دیتے تھے۔ ویسے تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے پرہیز کرتے، لیکن ہم کو قرآن یہ تلقین دے رہا ہے کہ اس سے پرہیز، لغو باتوں سے پرہیز کی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہے جن سے لوگ کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور وہ 2 باتیں کون سی ہے؟ صحت اور فرصت وقت۔ آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا، اس لیے ہم یہاں آئے۔ کل عارف صاحب نے جیسا بتایا کہ کئی لوگ خواہش مند تھے لیکن ان کو جو ہے صحت نے اجازت نہیں دی، اور بیماری کی وجہ سے ریزرویشن ہونے کے باوجود یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فرصت وقت، اس کا صحیح استعمال، مؤثر استعمال۔ وقت کا استعمال اب انفرادی بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ انفرادی بھی اس کا استعمال کرتے ہوں گے، سنڈے کی کلاسز بلاتے ہوں گے اپنے بچوں کی، جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، جن کو جمع وضع ضرب تقسیم نہیں آتی، ان کی سنڈے کو کلاسز لیتے ہوں گے، جس کو ہم ایکسٹرا کلاسز بولتے ہیں۔ میرا وہاں پر یہ اس عنوان کے تحت کہ داخلی استحکام، ہماری اس تنظیم کو انٹرنل اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے ملے، کیسے ہم اس کو پختہ کریں، اس کے اوپر زیادہ زور رہے گا۔ تو تنظیم جو ہوتی ہے وہ آپ سے کئی تقاضے کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم جس تنظیم میں ہیں اس کی سٹرکچر کو سمجھے، اس کی ساخت کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تنظیم کا معیار، جو سائنس کے ٹیچر ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی سیل از دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف این آرگینزم۔ سیل سے پھر ٹیشوز بنتے ہیں، بافت سے پھر عضو بنتے ہیں، عضو سے عضوی نظام بنتا ہے، عضوی نظام سے جو ہے ایک جاندار کا وجود آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تنظیم کے معیار رکھے اس طرح۔ ثم الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جس تنظیم میں کام کر رہے ہیں یہ بھی الگ الگ
मरहलों से गुजर के जो है ये पूरी वजूद में आई। सबसे पहले है मेंबर साजी। मेंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। अफरादी कुव्वत, बॉम्बे में जो डीपीडीएस की मीट थी उसके अंदर आप लोगों को जो है वो मेंबर साजी का जो इस मीकात का नया फॉर्म है जो मुख्तसर करके दिया गया वो दिए गए थे और आपसे ये मुतालबा किया गया था कि एक मेंबर साजी की मुहिम चलाएं। और वो फॉर्म 3 दिन पहले मैंने ये ऐलान भी किया था कि जो है वो फॉर्म आपको साथ में लाना है, क्योंकि उस पर पहले यूनिट प्रेसिडेंट की साइन होंगी, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसको वेरीफाई करेगा कि इसको रुकनियत देना है या नहीं देना है, क्योंकि जो हमारा ज़ाब्ते अखलाक है, हमारा जो मकसद है, वो मकसद पर अगर वो पूरा उतरता है तो ही वो आयटा का मेंबर बन सकता है। ये तो आयटा में आ गए और मकसद का उसको पासो लिहाज ही नहीं, हमारा जो ज़ाब्ते अखलाक है उसके ऊपर वो पूरी तरह से उतर रहा ही नहीं। इंशाअल्लाह जो है वो अहद होगा ज़ाब्ते अखलाक का, आपको पता चल जाएगा। तो बात ये चल रही थी कि हमारा जो है पहला जो है मेंबर, उसके बाद में मेंबर ही क्या करते हैं, यूनिट के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब कई जगहों पर इलेक्शन हुए, कई जगहों पर कोरोना की वजह से जो है इस मीकात के इलेक्शन नहीं हो पाए, इंशाअल्लाह वो हो जाएंगे। तो यहां से जो है फिर आयटा का मेंबर जो है, आयटा के जितने मेंबर है वो यूनिट प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। यूनिट प्रेसिडेंट फिर सेक्रेटरी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में तमाम यूनिट के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ये आयटा के मेंबरान की राय से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट नहीं, इलेक्ट, इंतखाब होता है आयटा में। और फिर वो इंतखाब की प्रोसेस आप लोगों को मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग आयटा से इससे भी मानूस होके जुड़ते हैं कि ये अजीब प्रोसेस है इलेक्शन की, कि जो है उसके बारे में बात होती है, गुफ्तगू होती है उसकी खूबियों के बारे में, उसकी खामियों के बारे में, और फिर उसको जो है प्रेसिडेंट बनाया जाता है, डीपी। अब ये जो है डीपी के जो है वो सेक्रेटरी रहते हैं, वो भी हो गए। फिर ये जो डीपी और डीएस मिलके स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबरों को इलेक्ट करते हैं। डीपी और डीएस ये क्या करते हैं, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल इनके मेंबरों को इलेक्ट करते हैं। और फिर वो एसएससी मेंबरान वो स्टेट के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उसका इंतखाब होता है उन्हीं में से। क्योंकि ये सिलसिला आपने उनको आपसे यानी आपने जो है उनको इसके जिम्मेदार समझा कि भाई ये अहल है उसके, फिर उन्होंने उनको समझा, फिर उन्होंने उनको समझा। हर स्टेट के डीपी और डीएस जो है अपने स्टेट का क्या चुनेंगे, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर चुनेंगे। स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर क्या चुनेंगे, स्टेट प्रेसिडेंट को चुनेंगे। स्टेट प्रेसिडेंट को यह हक होता है कि वो एसएससी मेंबरान के मशवरे से किसी सेक्रेटरी को सिलेक्ट करे। जैसा मेरा सिलेक्शन हुआ, शरीफ साहब का इलेक्शन में वो इलेक्ट हुए, तो इस तरीके से फिर जो है जिलाई सुदूर सेक्रेटरी और फिर उसके बाद में जो है रियासती सुदूर, नायब सदर भी प्रोविजन है इसके अंदर, नायब सदर भी कर सकते हैं। फिर ये जो है स्टेट के प्रेसिडेंट और स्टेट के प्रेसिडेंट और स्टेट सेक्रेटरी ये जो है मरकजी काउंसिल के मेंबर रहते हैं, यानी जिसको हम सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं, सीसी। और फिर सीसी की एक मीट होती है और उसमें से फिर सदर तंजीम सिलेक्ट किए जाते हैं। अब इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी प्रोविजन है, नायब सदर का भी प्रोविजन है। अभी हमारे जो है महाराष्ट्र में एक नायब सदर, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरीज है। उसी तरह से जो है हमारी नेशनल टीम में 2 नायब सदर और अलग अलग नेशनल सेक्रेटरी है, 3-3 स्टेट को मिला के एक नेशनल सेक्रेटरी। अब ये स्ट्रक्चर बताने का मकसद ये है कि ये हम इसके लिए जवाबदाह हैं। एसएससी के जितने मेंबर हैं वो जो है पहले नेशनल प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो अपनी सेंट्रल काउंसिल तश्कील देते हैं। तो ये जो है
स्टेट काउंसिल के जो मेंबरान हैं, ये नेशनल प्रेसिडेंट कि हमारा ये जो तंजीम के अलग अलग लेवल्स है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है किसी एक की नहीं चलती, या जिसको अपन बोलते मैं बोलूं वो कायदा, ऐसा नहीं चलता। हर चीज के लिए कोई ना कोई जो है वो जिम्मेदार होता है और जवाबदेह होता है। यूनिट प्रेसिडेंट जो है वो तमाम यूनिट के मेंबर्स के सामने जवाबदेह है। तो ये एक तंजीम का ये हुआ। अब चलिए थोड़ा सा तंजीम के इस्तेकाम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो तरह की ये चीजें रहती है, एक तो कयादत और एक कारकुनान। अब कयादत का काम यह होता है कि मंसूबा बनाना, और कारकुनान का काम यह होता है कि उस मंसूबे पर अमल करना। अब यहां पर सब जो है कायद के बारे में तो हो गया, वो मैं ज्यादा उसके बारे में बोलूंगा नहीं कि कायद के पूरे जो है कैरेक्टर्स जो है वो कल एक मुदल्लल तकरीर में जो है आ गए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कायद जो होता है वो सिर्फ दो चीजें यहां पर बताना चाहता हूं कि भाई अपने अफराद की सलाहियतों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यूनिट को अगर मुस्तहकम बनाना है, यूनिट मुस्तहकम होगा तो डिस्ट्रिक्ट मुस्तहकम होगा, जिला मुस्तहकम होगा तो स्टेट मुस्तहकम होंगी। तो उनके सलाहियतों के हिसाब से उनका काम हम लेना चाहिए। उसी के साथ साथ जो है इसमें थोड़ी सी भी अकरबा परवरी नहीं होना चाहिए कि ये मेरे करीब के है इसलिए इनको ये जरा उस अहल नहीं है। जिसको जो सलाहियतें हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल हम लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आखिर में एक ही बात ध्यान में रखना है कि तंजीम के मकसद के हुसूल के लिए हम काम कर रहे हैं। हमको तंजीम का मकसद हासिल करना है। अब इसमें हम नए नए तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जिद्दत पसंदी होना चाहिए किसी भी तंजीम में। पुराने रिवायती तरीकों से जो चलते आ रहा वही अगर चलते रहा तो जैसा पोस्ट कोविड पीरियड है हमारा, इसमें कुछ चीजें जैसा पहले जो है हर मीटिंग जो है वो फिजिकल होती थी, लेकिन कुछ मीटिंगें कोरोना की वजह से जो है वो जूम के ऊपर भी हुई है। जिद्दत पसंदी है तो ये बका के लिए जरूरी है। वसाइल का जो है मौसिर इस्तेमाल हम लोगों को आना चाहिए। जो हमारे पास में वसाइल है सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा सबसे अहम जो असासा है वो है हमारा कैडर, हमारे मेंबरान। उसका सही तरीके से हम लोगों को इस्तेमाल आना चाहिए। अगर तंजीम को मुस्तहकम करना है तो जैसा मैंने पहला तश्कीली मरहला बताया, उसके बाद में फिक्री मरहला। हमारा मकसद है, हमारी एक फिक्र है, उसी को मलहूज रखते हुए हमको काम करना है। फिर दस्तूरी मरहला होता है, आपके सामने आयटा का दस्तूर है, और फिर अमली मरहला होता है। उस दस्तूर के तनाजुर में पॉलिसी प्रोग्राम बनी। अब उस पॉलिसी प्रोग्राम को आपको आपके मकामात पर जो है अमली जामा पहनाना है। कोई भी तंजीम अगर अपने मकसद के हुसूल के लिए अमली मरहले से नहीं गुजरती तो वो जमूत का शिकार हो जाती है। अब यहां से जाने के बाद में अगर हम बैठे रहे तो हम पर जमूत तारी हो जाएगा। अब यहां से जाने के बाद में हम तो प्रोएक्टिव थे ही, जो पैसिव है उनको एक्टिव बनाना है। तो यहां से जाने के बाद में हमारा ये काम रहेगा इंशाअल्लाह। अब यहां से जाने के बाद में आप सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप जो है इसमें थोड़ा सा मशावरत का माहौल बनाएं, मशवरे लेकर काम करने की आदत। जैसा कल अब्दुल जलील साहब ने बताया कि मशवरे में हो सकता है कि भाई अलग अलग राय हो किसी की, लेकिन जब इत्तेफाक राय कायम हो जाए तो उसी पर सबने काम करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो है मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी तंजीम के हर मेंबर ने, हमारे तंजीम के हर जिम्मेदार ने मकसद को नहीं भूलना चाहिए। अपने अंदर मकसद का शऊर पैदा करें, अपने अंदर भी और हमारे कैडर के अंदर भी। उसी के साथ साथ हमारे मकसद से हमको मोहब्बत होना चाहिए। ये भी बहुत सारी चीजें जो है कल आ गई। अब हम हमारे कैडर में जो है मकसद के हुसूल के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मशावराती नशिस्तों में जो है बामानी और नतीजा खेज काम को अमल में लाना, या उसके लिए मशवरा करना कि भाई ये जो है
इससे ये मैंने इससे पहले वाली तकरीर में बताया था, कुछ मकसद हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। तो शॉर्ट टर्म पे भी काम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पर भी काम होना चाहिए। अब आयटा महाराष्ट्र आपसे क्या तकाजे करता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यह है कि आपका जो वक्त है उसमें से कुछ वक्त आप हमको दीजिए। एक जो है अपना आयटा महाराष्ट्र का ऑफिशियल है, एक डीपीडीएस का एक ग्रुप है, इसको एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। एक बार अगर आप देख लेंगे कि आप क्या है इसके अंदर, वो कुछ मुतालिबात है या कुछ नई एक्टिविटी किसी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, और अपने डिस्ट्रिक्ट में आप क्या कीजिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। सोशल मीडिया का मौसिर इस्तेमाल जब चल रही तो जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल अपन आयटा के इस्तेहकाम के लिए कर सकते हैं। तो आयटा के मेंबरान का एक ग्रुप डिस्ट्रिक्ट का हो, और वो जो है जो भी चीजें, अब कई बार ऐसा होता मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग चलती और मीटिंग में जो है हम शरीक तो हो जाते हैं लेकिन इधर उधर की बातें करते हैं। एक ही चीज, एक ही मशवरा इन्हों भी देते, उन्हों भी देते, उन्हों भी देते, वो एक ही चीज को बार बार आप आपके जो है मेंबर से, डीपी, डीएस, यूपी, यूएस से बाहमी रब्त रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो मकसद है उसके हुसूल के लिए, जैसा महीने में एक बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में एक बार कहीं पर बैठ के चाय पी लिए तो क्या होता है, एक जगह बैठ के सब मेंबरान, इनफॉर्मल मीटिंग जिसको बोलते, थोड़ा सा तस्करा हो जाए उसके अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये भी चीजें हैं। मेंबर का यूपी से यूएस से कनेक्शन हो, कांटेक्ट हो, डीपी का डीएस से कनेक्शन हो, कांटेक्ट हो, हफ्ता हफ्ता फोन ही नहीं, डीपी का डीएस को, डीएस का डीपी को, क्या हो रहा क्या चल रहा, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग। मीडिया में बात आई लेकिन ये एक चीज है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आप वक्तन फवक्तन करते रहें, आपके यूनिट में क्या हो रहा उसकी रिपोर्ट ग्रुप पर आना चाहिए। उसी के साथ साथ जो है लास्ट जो टॉपिक है मेरा, तन हो गया, मन हो गया, अब थोड़ा सा धन, फाइनेंस। तो फाइनेंस का ये है कि देखिए अल्लाह ताला ने अहले खैर हजरात बहुत पैदा किया, उसके लिए जो है हमारे पास में सारा जो है क्या होना चाहिए, आया कहां से, उसके लिए हमारे पास में एक रसीद बुक है। हमको यहां भी हिसाब देना है और आखिरत में भी हिसाब देना है। रसीद दें आप, जो डोनेशन दे रहे हैं उनको रसीद देना जरूरी है। उनको पता चलता कि रजिस्टर तंजीम है आयटा, ऑल इंडिया आइडल टीचर एसोसिएशन, इसका रजिस्टर नंबर ये है और ये चीजें, तो रसीद लें। और वाउचर बुक है वहां पर कि खर्च कहां करे, उससे वाउचर लिख के ले लें। काम करने वाले लोगों को पैसा कोई भी ला के देता, आप काम बताइए, पैसा खुद ब खुद आएगा आपके पास। आपके जिले में अगर अच्छा काम होगा तो लोग बोलेंगे अरे साहब कुछ लगता क्या, ले ना। तालीमी बेदारी मुहिम जो चली, अपनी तालीम हमारी हर हाल में जारी। मैंने खाली एक जगह जाके हमारे पूसद में ये बताया कि भाई हमको बैनर वगैरह बना के आपको सिर्फ लगाना है। एक साहब आइए 1000 रुपये रखो, बोले वो बैनर के प्रिंटिंग के लिए लगते, तो पैसे आते, लेकिन उसका सही तरीके से क्या हो हमारे पास में राइटिंग में हो कि इधर से आए और इधर गए। और दूसरी चीज कि हम लोग भी थोड़ा सा देना पैसा। हर मेंबर ने अगर महीने के 100 रुपये दिया तो क्या हर्ज है, 100 रुपये सिर्फ खाली आपका जो है मेंबर का कंट्रीब्यूशन, फिर आप जो है वही कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट को दें, डिस्ट्रिक्ट जो है थोड़ा सा स्टेट को भी दे क्योंकि स्टेट को भी चलाना है, और फिर हम लोगों को जो है वो नेशनल को भी देना पड़ता है। तो ये भी चीजें उसके अंदर हो। और वाउचर और ये जो अकाउंट ऑडिट लिखते वक्त ये बात ध्यान में रखें कि इनपुट रेसिपिएंट्स या इनपुट जो रसीदें आई वो, और आउटपुट हम पेमेंट्स किसको कर रहे, सीरियल नंबर, डेट और उसका जो है पर्टिकुलर्स काय के लिए वो पैसे खर्च हुए, ये सारी चीजें उसके ऊपर ध्यान रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, और इसका अज्र अल्लाह ताला हमको दुनिया में तो दे ही दे, लेकिन इसका अज्र सबसे ज्यादा हमको आखिरत में दे, और इसको हमारे बख्शिश का जरिया बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।